Okay. Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking a lecture of operation research. So, uh, this is our 11th lecture of operation research, and in the previous lecture, we tried to understand about the concept about the Modi method, how uh, we can find the optimal solutions, how we can find the optimal solutions with using the modified distributions methods, right? So in the previous lecture, we tried to understand what are the basic steps to find out the optimal solutions and what are the basic steps of the Modi method. So, based on the last lecture's response, few of the students are commenting that they required at least one example to understand this basic method with more depth, or some of the students are also sending me the personal message. They required one more example to understand the Modi method with little bit understanding. So based on the last lecture response, I try to solve one more example with you in this lecture, and one more method which is remaining in the transportation problem, which is the transshipment problem, right? uh, if it is possible, we try to understand the basic concept about the transshipments problem. So before starting it, we can start with the another more example, one more example with the modified distributions method. So in the given example on your screen, they are giving you the three factories, which is the F1, F2 and F3, and they are also giving the three warehouses, which is the W1, W2 and W3. The supply and demands are given as per which is we can show in the table, right? So first step is we have to check the problem which is in the balance condition or not, right? So we have to check the demand of the total, which is similar to the demand of the supply. So demand of the total is 180 plus 120, which is the 300, plus 150, which is the 450, right? Is it perfect? And the supply of the total, which is the 200, plus 160, which is the 360, and 360 plus 90, 360 plus 90, which is the 450. So the problem which is in the balance condition. So to solve this example with the Modi method, first we have to finalize the best initial basic feasible solution. So we required the initial basic solutions with the WEM method. So first we have to solve this example with the WEM method. So we try to solve the basic example with the WEM method. So here we have the basic solutions, initial basic solutions with the WEM method. So now you can show the table in which some of the allocations are shown with the help of the WEM method. So I think you all are okay, or you all are very comfortable with the WEM methods, right? So as per the response of the WEM method, the total transportation cost with the WEM method, which is the uh, which is the as per the allocations of the shell, as per the allocation of the cell, which is the 5,920 rupees, which is the total transportation cost, which is the total transportation cost with the WEM method as a initial feasible solution. So now our basic responsibility is start with the Modi method. So first we have to check the degeneracy in the given problem. So the to check the degeneracy is the equation, which is the m plus n minus 1. So number of row plus number of column minus 1, which is the 3 plus 3 minus 1, which is the 6 minus 1, which is the 5, and allocation of the cell, which is the 1 2 3 4 5. So both are same. So the problem is non degenerated, as you can show here. The statement is written that here the allocated cell are for 5, so the solution is non degenerated, right? Now
checking the solutions which is up, we have to find, now we have to find the optimal solutions by the Modi method. So we have to check which cells they are given as a occupied cell in which the allocation is given. So as per the previous table, so we make a new table with the allocations in with यानी मैं एक और आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ ना, तो ये जैसे ही आपके पास वैम का सॉल्यूशंस है ना, उस वैम के सॉल्यूशन के बेस्ड पे आपको एक नया टेबल फॉर्म करना है मोदी मेथड का सॉल्यूशंस पाने के लिए। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ये टेबल, एक ऐसा टेबल बनाना है जो जिस सेल के अंदर वैम मेथड के अंदर जो एलोकेशन हुआ था, वैम मेथड के अंदर एलोकेशन हुआ था, उस टेबल के बेस पे ऊपर आपको एक नया टेबल बनाए। आप देखोगे तो जिस टेबल के अंदर वैम मेथड के अंदर जो एलोकेशन हुआ है वो सेल जो है वो कौन से हैं, यानी आप 16 है, 14 है, 8 है, 12 है, 16 है, राइट। इस टेबल के अंदर जो है वो एलोकेशन हुआ है, तो आप देखोगे तो ये मैंने यूवी से जैसे आपने डेजिग्नेटेड कर दिया U1 U2 U3 और V1 V2 V3, और एक नया जो है वो आपने मोदी मेथड के लिए टेबल बना दिया है। आपने वहाँ लिखे हैं जो टेबल जो थे वो प्रीवियसली एलोकेटेड थे, राइट। अब आपको नेक्स्ट स्टेप मोदी मेथड के अंदर क्या आएगा, आपको ऐसा एक रो पसंद करना है जिसके अंदर मैक्सिमम एलोकेशन हो, राइट। तो आप देखोगे तो U1 आपका जो टेबल है उसके अंदर 2 एलोकेशन है, U1 जो आपका रो है उसके अंदर 2 एलोकेशन है, U2 रो है उसके अंदर 2 एलोकेशन है, और U3 जो रो है उसके अंदर 1 एलोकेशन है। यानी 2 एलोकेशन वाली आपके पास 2 रो है। उसमें से जो बड़े नंबर्स है उस किस रो के अंदर है, तो आप देखो कि U1 है जिसके अंदर सबसे बड़ा एलोकेशन हुआ है, राइट। U1 के अंदर सबसे बड़ा एलोकेशन हुआ है, तो आपने क्या किया कि U1 जो है उसको जो है उस रो को आपने 0 एज्यूम कर लिया। अब जैसे ही आप U1 को 0 एज्यूम कर लोगे तो आपके पास जो है वो इक्वेशन बनने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अब आपके पास जो है वो इक्वेशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो देखा था, उस हिसाब से जो है वो इक्वेशन बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब उस इक्वेशन को जो है वो आपको सॉल्व करना है। अब वो तो आपको आई थिंक आपने प्रीवियस एग्जाम्पल अगर थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपको थोड़ा वो बेसिक पता चल जाएगा। बेसिक तो आपको पता चला ही होगा कि किस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपको बेसिक चीज़ क्या करनी है, तो सबसे पहले जो है वो आपको एलोकेशन के बेस के ऊपर जाना है। जैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया है कि U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 16, राइट। पहला जो सेल था वो एलोकेशन है। फिर U1 प्लस V3 जिसके अंदर एलोकेशन है, राइट, फर्स्ट रो के अंदर इज इक्वल टू 12। देन उसके बाद तीसरा इक्वेशन आपका बनेगा U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 14, प्लस चौथा इक्वेशन आपका बनेगा U2 प्लस V2 इज इक्वल टू 8, राइट। अब लास्ट इक्वेशन जो फिफ्थ आपका इक्वेशन बनेगा विच इज द U3 प्लस V3 इज इक्वल टू 16। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ भी आपको U1 दिखेंगे उस इक्वेशन के अंदर आपको 0 पुट करना है, और उसके बाद जो डिफाइंड वैल्यू है वो अनडिफाइंड वैल्यू को आपको फाइंड करने की कोशिश करनी है। जैसे आप अनडिफाइंड वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको एक नया इक्वेशन जो है वो सारे वैल्यू जो अनडिफाइंड वैल्यू थे सारे, जैसे कि आपका U1 का था, U2 का था, U3 का था, V1 V2 V3, वो सारे वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको सारे वैल्यू जो है वो मिलने स्टार्ट हो गए, राइट, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा दैट इज यू हैव टू फाइंड द इवैल्यूएशंस ऑफ द शेल। अब इवैल्यूएशन ऑफ सेल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब जो सेल जो है वो जिसके अंदर एलोकेशन नहीं है, यू हैव टू इवैल्यूएट द सेल, उस सेल को आपको इवैल्यूएट करना है, राइट। उसके लिए जो था वो आपके पास लास्ट में हमने डिस्कशन किया था कि आपके पास एक इक्वेशन था कि Cij माइनस UI प्लस VJ, UI प्लस VJ, यानी आपका फर्स्ट जो
अनऑक्यूपाइड जिसके अंदर एलोकेशन नहीं था वो आपके पास आप देख लिए F1W2 यानी वो 20 वाला जो सेल है 20 यू हैव टू पुट द 20 इन द प्लेस ऑफ द Cij राइट माइनस U1 प्लस UI प्लस VJ। अब UI प्लस VJ में क्या आएगा कि UI प्लस VJ के अंदर आपने 20 लिया है तो 20 UI की जगह पे आपका U1 आएगा प्लस V2 आएगा यानी U1 दैट इज दी 0 एंड V2 दैट इज दी 10। अब आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस तरीके से जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल थे प्रीवियस जो आपके पास बेसिक वैम वाला सॉल्यूशन था उसके अंदर वो सारे आपने इवैल्यूएशन ऑफ सेल करना है। आप जैसे ही इवैल्यूएशन ऑफ सेल करोगे जिसके अंदर एलोकेशन नहीं है यानी एक 20 हो गया 18 हो गया 26 हो गया 24 ये आप चार करोगे अगर उस चारों का जो आंसर जो है वो इवैल्यूएशन ऑफ सेल में जो है पॉजिटिव आता है तो वो सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर उस चार में से एक के भी अंदर जो है वो आपका इवैल्यूएशन ऑफ सेल जो है वो नेगेटिव आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसको जो सेल जो है वो नेगेटिव आता है वहाँ से आपको एलोकेशन जो है वो री एलोकेशन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब री एलोकेशन जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि अभी जो आपके सामने जो फिगर दिख रहा है ना अभी आपके सामने जो फिगर दिख रहा है वो हमने आप देखिए जो एक टेबल है नीचे वाला जो टेबल है जिसके अंदर प्लस वाला साइन है वो प्लस वाला साइन जो है वो क्या दिखा रहा है कि उस सेल को आपने इवैल्यूएट किया है राइट वो 20 वाला है 18 वाला है 26 वाला है और 24 वाला है तो वो सारे के जो आंसर आ रहे हैं ना वो सारे आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है और जैसे ही वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो फिर क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो सॉल्यूशन जो हमें वैम से जो सॉल्यूशन मिला था वो ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन था राइट वो ही जो था वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन था। अगर नेगेटिव आता है तो फिर हमें जो है वो उसको लूप बना के जो है वो आगे हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है राइट। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशंस विथ यूजिंग द मोदी मेथड राइट। अब इसके अंदर आपको कोई सॉल्यूशन अगर कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। आई थिंक इसके अंदर तो डिफ़िकल्टीज जो है वो मोरलेस नहीं आनी चाहिए तो फिर भी अगर ऐसा होगा तो मैं और एक बार आपको कल एक थर्ड एग्जांपल विथ यूजिंग काइंड ऑफ द लूप सिस्टम मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम। अब उस ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम्स के अंदर चीज़ क्या होती है जो अलग तरीके का जो एक यूनिक कंसेप्ट है वो यूनिक कंसेप्ट आपको क्या दिखेगा। अब तक हमने जितने भी टिल द अबव प्रॉब्लम वी हैव अज्यूम्स दैट द डायरेक्ट रूट एग्जिस्ट फ्रॉम ईच सोर्सेज डेस्टिनेशंस। आप अब तक हमने ये एज्यूम कर लिया था कि एक जो डायरेक्ट रूट होता है ना वो हर एक सोर्सेज से जो है वो डेस्टिनेशन से निकलता है बट देयर इज ए सिचुएशंस। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होते हैं वेयर द डायरेक्ट शिपमेंट्स फ्रॉम सोर्सेज टू सोर्सेज और डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन इज प्रॉफिटेबल एंड पॉसिबल। अब कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो ऐसा चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आप अपना डायरेक्ट शिपमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह एक सोर्सेज से दूसरे सोर्सेज तक एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशंस तक आप उसको वहाँ पे आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो पॉसिबल भी है और वो प्रॉफिटेबल भी है। सो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम ट्रांसशिपमेंट्स यानी एक सोर्स से ही हम लोग दूसरे सोर्स को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशंस को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब उसके जो बेसिक डिमांड और सप्लाई थे उसको थोड़ा वो कंसिडर आप बाइफर्केट कर सकते हैं। उसको लूप में लिए बिना जो है वो एक सोर्स से आप दूसरे सोर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। This type of problem which is known as a transshipments problem. The solution of this kind of the problems can be obtained by the transportation model with the procedure which is given below. First, you have in the transportations model, we have a matrix of m into n.
साइज, यानी जो आपको नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है, उस साइज का एक मैट्रिक्स होना चाहिए. बट इन ट्रांसशिपमेंट्स वी हैव ए मैट्रिक्स साइज ऑफ m प्लस n इंटू m प्लस n. इस तरीके का जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा ट्रांसशिपमेंट्स प्रॉब्लम्स के अंदर. एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशंस के रिलेशंस में होता है ट्रांसशिपमेंट्स के अंदर. सिंस द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ योर सोर्सेज टू सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन इज अलाउड. अब इस तरीके के प्रॉब्लम के अंदर जैसे ही आपका जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप में है, तो उस कंडीशन के इस कंडीशंस के अंदर आप जो है वो सोर्स टू सोर्स और डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन जो है वो इंटरनली ट्रांसपोर्टेशंस कर सकते हो, राइट. So let assumes that the total quantity which is to be supplied in this problem is saying as a Q. In this problem, each source or the destination is having a potential of the supply as well as a demand. सारे जो sources है वो इतने उसके अंदर इतना potentials, वो इतने self potentials है जो खुद supply कर सकते हैं, खुद demand कर सकते हैं. The total supply is added to the actual supply of the sources as well as to the each destinations of the demand. Also, the demand at each sources and supply at each destinations are set equal to as a Q. Once the m plus n into m plus n matrix is to be prepared, जैसे ही अपना matrix multiplications में prepared हो जाता है, right, with the relevant cost of all cell, it can be solved by using the WAM method and the Modi method, right. इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं. आप देखोगे जैसे ही आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको वो ज़्यादा समझ आएगा. तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स दिख रहा है, फैक्ट्री और रिटेल स्टोर आपको साथ में दिख रहा है, राइट. एक मैट्रिक्स है मेरा ए बी सी, राइट, जो मल्टीप्लिकेशंस में है एक्स वाई जेड के अंदर. फैक्ट्रीज का जो मेरे पास दो मैट्रिक्स थे वो रिटेल स्टोर के साथ मल्टीप्लिकेशंस में, रिटेल स्टोर के जो मेरे दो मैट्रिक्स जो मेरे मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड के, वो जो है वो रिटेल स्टोर के साथ मल्टीप्लिकेशंस में है, राइट. यानी जो पूरा m प्लस n जो है वो पूरा मल्टीप्लिकेशंस आपको दिख रहा है. और सारे जो रिटेल स्टोर जो है उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आपको दिख रहा है. फैक्ट्री जो मैक्सिमम सप्लाई कर सकता था जो यूनिट्स है विच इज़ द 2000 एंड 3000, और जो रिटेल स्टोर है उसके जो खुद के डिमांड्स हैं वो डिमांड्स एक्स वाई जेड क्या है 1000, 1500 एंड 2500. सो द प्रॉब्लम विच इज़ इन द बैलेंस कंडीशन विच इज़ दी क्यू आपने देखा था ना, अभी हमने डिस्कस किया क्यू विच इज़ दी 5000 यूनिट. सो अब ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, वी हैव टू प्रिपेयर ए प्रॉब्लम इनटू द टेब्यूलर फॉर्म्स. इसको टेब्यूलर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. हियर द टोटल सप्लाई, द क्यू विच इज़ दी 5000 यूनिट. So we have to, as we add the 5000 unit to each supply and demand. अब इसको क्या करना है, जैसे प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस कंडीशन में हमको दिख रहा है. अब जो सारे हमें डिमांड और सप्लाई है उसमें 5000 यूनिट जो है उसको ऐड करने, जिस तरीके से ये ट्रांसमिट जो प्रॉब्लम है ट्रांसशिपमेंट्स वाला वो एक बैलेंस कंडीशन में आ जाए, राइट. ये इसका बेसिक रूल्स है. आपका जो क्यू बनता है ना, जो डिमांड और सप्लाई का जो टोटल बनता है वो आपको सब डिमांड और सप्लाई के अंदर ऐड करना है. तो जैसे ही आप देखोगे तो मेरे पास एक नया टेबल अभी बन के आ रहा है. तो उसमें से मैंने क्या किया है, तो आपके पास जो अभी टेबल है वो टेबल के अंदर आप देख लीजिए मेरा सप्लाई जो था, प्रीवियस सप्लाई था वो 2000 और 3000 था, राइट. उसमें मैंने 5000 ऐड कर दिए, यानी वो 7000 और 8000 हो जाएगा. और जहाँ पे सप्लाई नहीं थे वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5000 मैंने ऐड कर दिया. अब उसी तरीके से जो मेरे डिमांड थे वो डिमांड के अंदर भी मैंने सेम उसी कंडीशन के मैंने 5000 और 5000 ऐड कर दिया, यानी 6000, 6500 एंड 7500 हो गया. अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है.
तो आप डिमांड और सप्लाई का आप टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपके 6000 प्लस 6500 यानी 12500 और 7500, जैसे 500 ऐड कर दोगे राइट, तो वो 13000 हो जाएगा। 13 और 7 20,000 जो है वो मेरा डिमांड का टोटल हो रहा है। और सिमिलरली मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा सप्लाई का टोटल क्या हो रहा है। तो सप्लाई का आप टोटल देखोगे तो मेरा जो डिमांड का टोटल था वो 30,000 था राइट, 30,000 हुए थे। वैसे ही मेरा सप्लाई का टोटल जो है वो 5 यानी 15,000, फिर 7 यानी 15 और 7 22, 22 प्लस 8 यानी वो भी 30,000। यानी अब जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस कंडीशन में है, उस प्रॉब्लम को हमें वैम मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। जैसे ही मैंने वैम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की तो अब आपको टेबल में आपको सपोज दिख रहा है कि कुछ कुछ जगह पे जो है वो एलोकेशन किए हैं राइट। अब आपको वैम मेथड तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैम मेथड सबको पता ही है। आपको पेनल्टी लेके वैम मेथड से सॉल्यूशन करना है, जहाँ पर जो है वो हाईएस्ट पेनल्टी होगी उस रो उस कॉलम के अंदर आपको एलोकेशन करना है। उस तरीके से जैसे ही आपने एलोकेशन किया तो एलोकेशन के बेस के ऊपर आपको वैम से एक इनिशियल बेसिक फिजिबल जो सॉल्यूशन था वो आपको मिल जाएगा। अब उसके बेसिस के ऊपर आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम जो है वो जो है डीजनरेसी प्रॉब्लम है और नॉन डीजनरेसी प्रॉब्लम है। तो आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो चेक करना पड़ेगा। यानी आपका 5 रो है, 5 जो है वो कॉलम है, यानी 5 प्लस 5 यानी 10 माइनस 1 राइट, यानी 9 हो गया। और आपने एलोकेशन जो है वो कितने किया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 एलोकेशन किए, यानी दोनों नंबर जो है सिमिलर आ रहा है। सो द प्रॉब्लम विच इज़ दी नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम। अब यहाँ से आपका जैसे आपका वैम से सॉल्यूशन हो गया, तो वैम से जैसे सॉल्यूशन हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट होता है, अब आपने जहाँ पे भी एलोकेशन किया था वैस उसका एक सिर्फ उस नंबर से आपको एक टेबल बनाना है। उस नंबर से जैसे आप टेबल बनाओगे मोदी मेथड के लिए, तो मैंने आप देखोगे कि मैं आपको थोड़ा जूम करने की कोशिश करके बताता हूँ कि आपने एक ऐसा टेबल बना दिया जिसको U और V से डेजिग्नेटेड किया है, U1 U2 U3 U4 U5 V1 V2 V3 V4 V5। अब उसमें से जिस रो के अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो गए उस रो को हम या उस कॉलम को हम जो है वो 0 से डेजिग्नेट करेंगे। तो आप U1 रो को देखिए, U1 रो आप देखोगे तो U1 रो के अंदर जो है वो 2 एलोकेशन है, U2 के अंदर 3 है, U3 के अंदर देखोगे तो 2 है, U4 के अंदर 1, U5 के अंदर 1 राइट। अब सिमिलरली जो आपका V1 और V5 है वो रो के अंदर देखोगे तो V1 रो के अंदर 1, V2 के अंदर 1, V3 के अंदर 2, V4 देखिए तो V4 के अंदर 3 एलोकेशन है। अब उसका टोटल देख लीजिए आप, 5 4 9। अब U2 जो रो थी उसके अंदर 3 एलोकेशन थे, यानी 4 और 3 7, यानी V4 जो है वो सबसे ज़्यादा एलोकेशन वाला नंबर हमें दिख रहा है। सो इसलिए हमने जो V4 था उसके बराबर जो है वो हमने 0 एज्यूम किया। अब जैसे ही हमने 0 एज्यूम किया तो आपके पास उस कंडीशन के अंदर आपको इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 0, U1 प्लस V3 इज इक्वल टू 7, ऐसे आपने सारे इक्वेशंस बना दिए। अब जहाँ पे V4 होगा उस कंडीशन में आपको 0 जो है वो पुट करना है। आप जैसे ही 0 पुट करोगे तो उसके बाद जो है वो आपको सारे जो है वो U और V की वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो अब हमारे पास U1 टू U5 की वैल्यूज़ है और V1 टू V5 की वैल्यू है। अब उस कंडीशन के अंदर जितने भी सारे ऊपर वाले टेबल के अंदर जितने भी सारे अनऑक्यूपाइड सेल थे, अनऑक्यूपाइड सेल, उसको आपको इवेल्युएट करना है, यानी इवेल्युएशन ऑफ सेल की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अब इवेल्युएशन ऑफ सेल जैसे आपका पहले कॉलम के अंदर देखोगे तो 6 7 1 8 इस जो सेल थे उसके अंदर एलोकेशन नहीं था, तो उस एलोकेशन को आपको इवेल्युएट करना है। जैसे आप इवेल्युएट करोगे तो उसके लिए एक इक्वेशन था, जैसे Cij माइनस Ui प्लस Vj। आप उस तरीके से जैसे आप आइडेंटिफाइड करोगे तो आपको जो है वो
उस इक्वेशन के जो भी आंसर मिलेंगे वो आंसर जो है वो पॉजिटिव मिलने चाहिए। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो आपका जो आंसर, जो आपका जो सॉल्यूशन था वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन था। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन था वो अभी ऑप्टिमम होने के चांसेस हैं, राइट। तो आपको वो चीज़ पहले फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ही वो चीज़ आप फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ कुछ जगह पे ऐसे नेगेटिव्स जो है वो वैल्यू मिल रहा है। अब जैसे ही नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है तो उस नेगेटिव वैल्यू के अंदर जो है वो आपको री एलोकेशन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो ए वाई के अंदर मुझे सबसे पहला नेगेटिव मिल रहा है -4, देखिए आप। फिर ए जेड के अंदर मुझे -2 मिल रहा है, और मुझे मुझे बी ए के अंदर जो है फिर मुझे कहाँ का मिल रहा है, तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इन वी सी ई इज़ -4। तो -4 जो है उसमें अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही है, सो वहाँ से मैक्सिमम 4 के अंदर एलोकेशन क्या था, यानी 1000 का एलोकेशन था। उस 1000 के एलोकेशंस को आपको लूप बना के चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब मैक्सिमम एलोकेशंस जो था वो कितना था, तो 1000 था। अब उस 1000 वाला जो एलोकेशंस था वो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे री एलोकेशन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप री एलोकेशन जो है वो आप स्टार्ट करोगे 1000 के अंदर, तो जैसे ही आपने वहाँ पे 1000 एलोकेशन किया तो सपोज़ उसकी जो बाजू वाला सेल था वो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। वो आपको प्रीवियस टेबल में एक बार देखना जाना पड़ेगा कि एलोकेशन क्या चीज़ थी। आप देखोगे तो मुझे सबसे नेगेटिव आंसर कहाँ पे मिला है, सबसे बड़ा नेगेटिव आंसर जो है वो मुझे ए वाई, यानी आप ए वाई में देखोगे तो 8 नंबर जो है वहाँ पे मुझे नेगेटिव मिला है। तो वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का एलोकेशन नहीं था। तो मैंने वहाँ से 100 का एलोकेशन मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने वहाँ पे 100 का एलोकेशन किया तो आप उसके बाजू वाला सेल, जो 8 के जो बाजू वाला सेल था वो 7, उसके अंदर 2000 का एलोकेशन किया हुआ है, राइट। अब जैसे ही मैं 8000 के साथ एक प्लस करूँगी तो मुझे उसके बाजू वाला जो सेल था उसके अंदर माइनस करना पड़ेगा, यानी 1000 मैंने माइनस किया। अब उसके नीचे जो है वो लूप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो उसके नीचे वाला जो सेल है उसके अंदर जो है मैंने ऊपर माइनस किए तो नीचे प्लस करने पड़ेंगे। तो नीचे वाला जो सेल है वो 4000 का है, वहाँ पे मैंने माइनस किया 1000, राइट। मैंने 8 के अंदर प्लस किया था, 7 के अंदर मैंने माइनस किया, 0 के अंदर मुझे प्लस करना पड़ेगा, यानी मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5000। और उसके बाजू वाला जो सेल है उसके अंदर जो है मुझे माइनस करने पड़ेगी, यानी वो हो जाएगा अपना 0। इस तरीके से मैंने लूप बना के जो है री एलोकेशन किया। जैसे ही मैंने री एलोकेशन किया यानी मेरे 1000, 1000, 5000 और 0। अब उसके बाद जो है मुझे फिर से इवैल्यूएशन ऑफ सेल करना पड़ेगा। अब जैसे इवैल्यूएशन ऑफ सेल होगा तो मेरा फिर से आपके पास अब नए एलोकेशंस आपको दिख रहा है, आपको फिर से नए यूवी फाइंड्स करने पड़ेंगे। फिर से आप जैसे नए यूवी फाइंड करोगे तो उस बेस के ऊपर जो है, अब उसके बाद जैसे आपको u और v, u1 टू u5 और v1 टू v5 के आपको वैल्यू मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपको है फिर से जिस सेल के अंदर इवैल्यूएशंस नहीं हुए हैं उस सेल को आपको इवैल्यूएशन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। जिसके अंदर एलोकेशन नहीं है उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर उसके सारे जो आंसर पॉजिटिव आते हैं तो आपका सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम है। अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको फिर से जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर आ रहा है वहाँ से आपको री एलोकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर जो है कोई भी चीज़ जो है वो आपको नेगेटिव नहीं मिल रही है। आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि वी गेट द टेबल वेयर नो नेगेटिव सेल वैल्यू, सो दस दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब आपको जहाँ पे भी आपके पूरे टेबल के अंदर m इंटू एम प्लस m इंटू एम का जो टेबल है उसके अंदर जहाँ पे भी आपने एलोकेशन किया है उसको आपको उस सेल वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। आप जैसे ही सेल वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक
ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगा। अब वो ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 24,500 जो है वो आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आ रहा है। सो दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब वो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस जो है वो बेसिकली हमें जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है, राइट। उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज आप उस सॉल्यूशन को कर नहीं सकते। तो दिस प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एज ए ट्रांसिटमेंट्स प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम विच इज़ नोन एज ए ट्रांसिटमेंट्स प्रॉब्लम। मैंने क्या किया कि जैसे m इंटू एम प्लस एम इंटू एन का मुझे सेल जो है दिया गया है, उसका जो Q आता है, जो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का टोटल मैच होता है, वो उसको मैंने क्या किया, उसको सब डिमांड और सप्लाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने वैम से फाइंड आउट सॉल्यूशन किया। जैसे वैम से सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है, उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा जो स्टेप था, वो नेक्स्ट स्टेप था कि मुझे मोदी मेथड से उसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले मुझे यू और वी फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे ही मैंने यू और वी फाइंड किए, उसके बाद जो है मुझे इवैल्यूएशन ऑफ सेल करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा इवैल्यूएशन ऑफ सेल यानी कि सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे मेरा हो गया, उसके बाद जो है वो आपका सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा। और अगर उसमें से सारे नंबर्स जो है पॉजिटिव आते हैं तो वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया। अगर कोई नेगेटिव आता है, जो सपोज कि आपके 3 और 4 नेगेटिव मिले, तो उसमें से जो सबसे बड़ा नेगेटिव होगा ना, वहाँ से आपको रीएलोकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। आप रीएलोकेशन स्टार्ट करके फिर आपको एक लूप बनाना है और फिर उसको लूप बना के चेक करना है। और जैसे ही आपको नया टेबल मिलेगा, क्योंकि नया एलोकेशन किया आपने जहाँ से नेगेटिव आया था, तो उस नए टेबल के अंदर फिर से आपको u और v फाइंड आउट करना है। जैसे u v फाइंड आउट हो जाएंगे तो सारे u1 और u1 टू u5 और v1 टू v5 के वैल्यू मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको इवैल्यूएशन ऑफ सेल करना पड़ेगा। अगर फिर से वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ये जो प्रॉब्लम है वो एग्जाम के अंदर नॉर्मली 14 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। 14 मार्क का ये आपका क्वेश्चंस रहता है। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी तक बताने की कोशिश की है, राइट। इस प्रॉब्लम के अंदर किसी को डिफ़िकल्टी है, मोदी मेथड के अंदर किसी को डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में मुझे पूछ सकते हैं, राइट। ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना जो है वो एनरोलमेंट नंबर जो है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर आपको लिखना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे अपना जो ऑफिशियली जो है वो चैप्टर ख़त्म हो रहा है। फिर भी अगर मैं एक कल का जो लेक्चर है वो मैं इसके लिए रिजर्व रखता हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को अब तक की जो 6 टेक्निक्स हमने सीखी, राइट। नॉर्थ वेस्ट हो गया, लिस्ट कोस्ट हो गया, वैम हो गया, फिर उसके बाद मोदी के अंदर स्टेपिंग स्टोन हो गया, सॉरी ऑप्टिमम के अंदर स्टेपिंग स्टोन हो गया, मोदी मेथड हो गया और ट्रांसिटमेंट्स प्रॉब्लम्स हो गए। इस 6 टेक्निक के अंदर किसी भी स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज़ है तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम्स है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिए। तो मैं जो कल का जो लेक्चर है वो स्पेसिफिक उसके साथ ही मैं ऑक्यूपाई करूँगा, राइट। वरना कल जो है वो अपना प्रॉब्लम जो अपना जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। सो आपको अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो कल लिख दिएगा। तो कल आपको ये चीज़ क्या करनी है कि रात को 8 बजे से पहले अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो उस चीज़ को आपको YouTube के कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो फिर मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आपको कल वो जो है वो आपकी डिफ़िकल्टीज़ जो है जितनी भी जिसको भी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो वो सॉल्व करने की कोशिश कराऊंगा, राइट। So this is all about the transportation problem. Thank you so much for watching.